So hello everybody, my name is Vivek Mehra and हमारे साथ है मिस्टर जेडी घई आज। मिस्टर घई सर संता बंता के क्रिएटर है, फाउंडर है एंड जितनी कम बात करें इनकी जर्नी के बारे में उतना कम है। सो ये पहले थे जिन्होंने इंटरनेट इंडस्ट्री में इंडिया में एक रेवोल्यूशन लेके आए और हम सबको बताया कि इंटरनेट के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं। और ये कहना गलत नहीं होगा कि अब संता बंता किसी भी नंबर गेम से बहुत ऊपर है। अब प्रीवियसली वो इंडिया का नंबर वन बॉलीवुड वेबसाइट थी और अब वो नंबर वन नंबर टू की लेवल से बहुत ऊपर है। सो वेलकम सर एंड वेलकम टू आई एम स्टिल ह्यूमन एंड इट हैज बीन अ ग्रेट जर्नी विद यू सर एज अ मेंटोर ऑफ आई एम स्टिल ह्यूमन एंड आपने काफी सारे रास्ते दिखाए हमको, काफी सारे इवेंट्स में हमें सपोर्ट किया एंड जो हमारी कमी पेशी थी उन चीजों को पूरा किया। थैंक यू सो मच सर एंड वेलकम to IS Talks. Good noon, everybody. It's a wonderful feeling sitting in front of you, and I'm going live on FB for the first time, so it's very interesting. Let's see how it goes about, and thank you for having me over here. And today I realized that I can still tie my turban, because tying it after almost 1.5 months. So it's a different feeling getting ready and tying a turban, and I'm all set. I'm all set. So shoot. So sir, basically अगर हम इस इंटरव्यू को शुरू करें तो सबसे पहला सवाल मेरा यही होगा, कमिंग फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली। आपने 1999 2000 में संता बंता को शुरू किया और वो क्या ऐसा थॉट था कि आपने बिजनेस अपने फैमिली बिजनेस को छोड़ के एकदम से स्टार्टअप की तरफ मूव किए और एक रेवोल्यूशन क्रिएट कर दिया अचानक से, और लोगों को पूरा एक रास्ता दिखाया कि किस तरीके से हम इंटरनेट को यूटिलाइज कर सकते हैं और किस तरीके से हम रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं और किस तरीके से हम एक प्लेटफॉर्म को क्रिएट कर सकते हैं जहां पे लोग मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ लोगों ने यादें बनाई हैं। तो सर वो क्या जर्नी थी, क्या थॉट प्रोसेस था जिसके संताबंता.com के पीछे? पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट बात, अभी I didn't create a revolution or I didn't create anything. I'm thankful to Almighty that He sowed a seed in my mind. Hello, Vivek. Yes, sir. Your voice is breaking up. Okay, so I'm thankful to the Almighty that He put that seed in my mind that you'll have to do this thing, because I believe in destiny and I'm just an ordinary guy. I'm really thankful to God for it. And उन्होंने मेरी मतलब झोली में डाल दिया इनफैक्ट। और yeah, there are a number of reasons that I started this, and the first and the foremost has been that I was really fond of humor, and stayed in a hostel for 2 years. The power of humor is really very immense. So if you have humor by your side, you cannot anywhere. Let it be business meeting, let it be school, college, university, social gathering, anywhere. Humor is like a magnet. Everyone gets attracted to it. If someone is telling a joke, everyone will lend their ear to it. So अगर आपकी पर्सनैलिटी से एसोसिएट हो जाए, ऑल द मोर बेटर. पीपल लव टू लिसन टू यू, एंड व्हेन दे आर लिसनिंग टू यू, आप फिर बीच में बिजनेस की बात भी छोड़ दो. So, and the other thing why I left my family business and started doing santabanta.com, the reason is that my dad was a self-made man, and I always used to hear it from him that I'm a self-made man, that he started his journey with 800 rupees and now he is in hundreds of crores.
So he always used to say that I'm a self-made man, self-made man. So I used to think, what's my fault if I am born with a silver spoon? So I thought that even I need to create something. So I am thankful to my dad for it, because he put that idea in my mind that it's always good that you are self-made and you are able to carve a niche in something good and big in life. So that acted as a motivational factor for me, and I thought that the only way I can do this is that I have to get out of the business that my dad is pursuing, because ਕਹਿੰਦੇ board ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. So he was like a board, and whatever I was doing with him when I started out in 1989, when I completed my post graduation. So I worked with him till 97. I realized that I have to be on my own if I have to do something in my life. So now I also can say I'm a self-made man. I feel happy about it. Even my dad feels happy about it. That yes, the moment Santa Banta or humor is mentioned, I'm remembered, and that's the more important reason. And then how that idea came to my mind, or how it was planted in my mind. So Santa and Banta were very important characters in Punjab folklore. So I really thank Santa and Banta for it, because earlier, you know, you see, when you are telling jokes, तो आप बोलते हो चलो विवेक का नाम है, तो विवेक एक बार वहां गया, तो when 4 people are standing, तो विवेक is a butt of joke. So Vivek will feel bad about it. So what is the fun of that joke? भी एक बंदे को बुरा लग रहा है और 3 बंदों को मजा आ रहा है. So some very wise man so really had this idea भी संता बंता 2 कैरेक्टर हो, और जो भी कैरेक्टर जोक है उन्हीं पे हो, भी संता बंते पे, बंता संते पे कर रहा है, और वो सुना भी रहा है, तो संता बंता का 3rd person का नाम लेके सुना रहा है. No one is feeling bad, everyone is enjoying it, everyone is happy. So then it turns from sarcasm to joke. अगर किसी का नाम लेके जो वहां पे खड़ा उस पर करेंगे तो वो sarcasm हो जाएगा. Now it becomes plain joke, which no one would mind. So हमें भी बड़ी प्रॉब्लम आई मेरे को शुरू में, जब हमने ये आइडिया इंस्टीट्यूशनलाइज किया, तो आई रियलाइज भी ये सिख इशू ना कहीं बन जाए भी संता बंता को लेके. जी सर. एंड उस कारण हमने जो लोगो भी बनाया, एक को बना टर्बन एंड वन विदाउट द हेयर. So I wanted to convey the feeling that it's not about a particular community, it is about Punjabism. Punjabi can be a Hindu, can be a Sard, or can be anyone else, can be a Muslim also, can be a Christian also. Punjabi to Punjabi. तो इस कारण टचवुड मेरे को कोई दिक्कत भी नहीं आई. And the other good thing or big thing that we did was we never used Singh behind Santa. It's always Santa and Banta. So that also helped. Now, the best thing that came out of it, though I'm not responsible for it, it happened. I didn't even visualize it that it will happen. ये जो जोक हो गए संता और बंता के, इस कारण सरदार जोक बंद हो गए, which no one realizes, which is the best thing that I think it came out of it. So अगर मैं अपनी कोई कंट्रीब्यूशन मांगूंगा तो ये मांगूंगा. और एक और बड़ा इंटरेस्टिंग मैं आपको इंसिडेंट सुनाना चाहता हूँ, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल कीप आस्किंग मी, आपका संता बंता चल रहा है, वो चक्कर पड़ गया था सुप्रीम कोर्ट में, थिंग लाइक दैट. सो आई कीप टेलिंग देम भी हमारा तो कभी इशू ही नहीं था. इट वाज ऑलवेज अबाउट सरदार एंड सिंह जोक्स, एंड देयर वर 44 साइड्स अगेंस्ट the case was filed
and we were never there because we don't have Sardar or Singh jokes. मीडिया ने इसको संता बंता का रूप दे दिया था, जस्ट टू अट्रैक्ट आई बॉल्स, टीआरपी इंक्रीज करने के लिए. एंड दे ऑलवेज आस्क्ड मी, आप इंटरव्यू के लिए आओ. आई रिफ्यूज्ड. व्हाई? आई एम नॉट पार्ट ऑफ द केस, व्हाई शुड आई कम इन फ्रंट? So some wise man suggested it to me, and I'm thankful to that wise man. भी कहता आप इशू में ही नहीं हो, आपको मेरे एडवोकेट के भी पास गया था, कहता आप पार्टी में नहीं हो, why do you want to be part of it? So the Santa Banta journey has been very, very interesting, and I've loved it. I love every moment of it. I'm still creating humor all the time. I'm still creating content. लोग बोर हो रहे हैं और मैं बिल्कुल बोर नहीं हो रहा, मैं काम कर रहा हूँ. I'm working on my site, and my team is sitting at home, working from home, and people have to realize that things are going to change post-COVID, and most of the things would be online. Infosys has already decided that 75% of their staff would be working from home. Earlier, it was 25%. So everyone would get to spend more time with their families or to fight with their spouses. तो उनको झगड़ा करने का और ज़्यादा मौका मिल जाएगा. So everything will move online, and it's a very good thing. हम ऐसे फालतू में कम्यूट करते रहते हैं to go to conferences, to seminars, for business meetings. This is a very good medium online. We are sitting over here. I think my reach would be a lot more over here compared to if I am addressing an audience. I'll have 50 or 100 or 200. Over here, thousands of people can be reached. And exactly, sir. We really didn't realize the importance of this medium. Everyone will realize it. Whosoever didn't use it earlier had to use it now. It's using it now. So ये बहुत बढ़िया मीडियम है. E-commerce companies would do wonders, especially जो niche areas में काम कर रही हैं. So that's been my journey. सर आपने मेरे को एक बारी एक इंसिडेंट बताया था कि आपने डोमेन कैसे खरीदा था. अब तो आजकल तो सारा कुछ इंटरनेट पे हो गया है, एंड पीपल वेबसाइट पे जाते हैं, कार्ड लगाते हैं और डोमेन खरीद लेते हैं. तो आपका वो जो एक्सपीरियंस था santabanta.com खरीदने का, वो एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा आप बताइए, क्योंकि आजकल की जनरेशन के लिए एक बहुत यूनिक एक्सपीरियंस होगा जो आपने एक्सपीरियंस किया था. It was very interesting. So आगे डोमेन तो ऑनलाइन ही लेते थे, बट जब हम लेते थे ना, उसकी कंफर्मेशन आती थी 15-20 दिन बाद. There used to be a letter coming from Network Solutions from America to you. तो आता था भी आपका डोमेन हो गया, अभी आप $35 डिपॉजिट करा दो. $35 का डोमेन होता था उसका. सो हमने फिर वो $35 उनको किए ट्रांसफर, तो वो डोमेन हमारा हो गया. तो हम ना बैठे बैठे बहुत डोमेन बुक करते रहते थे ऐसे, और इम्पल्सिव होता था भी, हाँ यार ये अच्छा है, ये डोमेन ले लो. पैसे तो उस वक्त देने नहीं पड़ते थे, पैसे तब देने हैं जब लेटर आएगी, तब उस वक्त हमने ट्रांसफर करने या डिपॉजिट करने. मेरे को ये भी नहीं अभी याद भी हमने कैसे उनको पैसे दिए थे, क्रेडिट कार्ड किसके थ्रू दिए थे, या आई डोंट नो, आई रियली डोंट रिमेम्बर. सो इम्पल्सिव हम डोमेन ले लेते. एक मेरे को नाम था वो तीतर, पार्टरेज होता है ना, तीतर.com डोमेन ले लिया. जब तक वो आया तब तक मूड बदल गया, फाड़ के फेंक दिया डस्टबिन में. आई थिंक दैट वाज अ बेटर टाइम. नाउ वी डू इम्पल्सिव शॉपिंग, विंडो शॉपिंग कर लेते हैं, यार ये डोमेन अच्छा है तो ले लो, और बाद में कहते थे यार ऐसे ही फालतू में ले लिया. so many domains with me, उसकी रिन्यूअल चलती रहती है. 2-3 साल बाद लगता है यार नहीं इसकी जरूरत नहीं, अब रहने दो, छोड़ दो इसको, because it's a huge expense when you have so many domains with you,
and you have to pay yearly for it. So yes, things were totally different at that point. एक और मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ. उस वक्त डायल अप होता था. क्या होता था सर? डायल अप कनेक्शन होते थे इंटरनेट के. यूज्ड टू डायल थ्रू मोबाइल, लैंडलाइन नंबर, उससे कनेक्ट होता था मॉडेम. जी. तो फिर इंटरनेट चलता था. So the first time I took a dial-up was in, I think, 1999 only. Yeah, 1999. उस वक्त नहीं, 98 या 99 में. तो उस वक्त हमें कनेक्शन मिलता था दिल्ली से. जो दिल्ली से कनेक्शन मिलता था तो हमें पैसे वो एडवांस में डिपॉजिट करने पड़ते थे और वो कनेक्शन मिल जाता था. तो जो हमने इंटरनेट यूज करना है, डायल अप किया, एंड इट यूज्ड टू बी एन एसटीडी कॉल टू दिल्ली, एंड दैट आल्सो वाज वेरी कॉस्टली एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. सो हमने वो डायल अप करना, इंटरनेट मिलाना, जो करना करके एकदम बंद कर देना, भी फालतू एसटीडी का खर्चा ना पड़े. सो ब्राउजिंग वाज लिमिटेड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. और जब हमने साइट लॉन्च की तो वी नेवर रियलाइज दैट साइट, तो हमने पहला पेज ही हमारा बहुत हैवी था. इतना हैवी था भी पूछो मत. और हम फिर जब अपलोड करने लगे साइट, so we launched this site on 17th of June 2000 at Chandigarh. We invited Mrs. Kiran Bedi. She was at Delhi at that point of time. So उनको चंडीगढ़ में लाए, यहाँ पे लॉन्च किया. तो हमारी साइट अपलोड नहीं हो रही थी, तो हम बड़े चक्कर में पड़ गए. तो वी हैड टू यूज टू साइमल्टेनियस connections of internet to upload that site. So it was a huge task. सारी रात वगैरह भी, सुबह ये लॉन्च हुई है. So कुछ पार्ट फिर भी नहीं हुई थी, तो हमें बहुत दिक्कत आई. जो हमने प्रेजेंटेशन की वो ऑनलाइन नहीं कर सके सारी, क्योंकि वहां भी कनेक्शन नहीं अवेलेबल था ना. जहां से हमने माउंट व्यू में लॉन्च किया था वहां भी इंटरनेट का कनेक्शन नहीं था. So these were the issues we faced, and it's interesting. But one thing we realized very early, that अगर masses के पास पहुंचना है ना, तो the speed of the site has to be very very fast, very very fast. तो हमने इतनी लाइट कर ली साइट, इतनी लाइट कर ली. हमारा ई कार्ड जो होता था ना, फ्लैश के में ई कार्ड बनते थे ग्रीटिंग. सो थंब रूल वाज 60 या 70 केबी से ऊपर का ई कार्ड नहीं होना चाहिए. अगर उससे ऊपर हो गया वो रिजेक्ट हो जाता था, वो नहीं जाता. इसे दोबारा ऑप्टिमाइज करो या इसे कट शॉर्ट करो लेंथ, तो हम उसे अपलोड करते थे. सो एज अ रिजल्ट आवर ट्रैफिक ग्रू लाइक एनीथिंग थ्रू वर्ड ऑफ माउथ. एक बंदे ने यूज किया. और सॉरी टू कट यू सर, मैं इसमें एक चीज, मैं बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, आज की डेट में कोई भी ब्लॉग बनाता है, कोई भी वेबसाइट बना रहा है, दे आर रनिंग टुवर्ड्स द रेवेन्यू. I missed out. करना शुरू किया. उस टाइम में मेरे ख्याल से गूगल एड्स भी नया नया आया था. व्हाट दे वर पेइंग यू, इफ यू डोंट माइंड शेयरिंग. और किस तरीके से आपने अपने आप को एज अ ब्रांड, एक ब्रांड बनाई. जिस टाइम पे मेरे ख्याल से ब्रांड के बारे में लोगों को इतना पता भी नहीं था कि ब्रांड बिल्डिंग कैसे करनी है. आप एक ब्रांड बन गए, जो घर घर में, मेरे ख्याल से, मेरे को याद है, मेरे घर पे एक सचिन तेंदुलकर का पोस्टर होता था और उसमें संता बंता का लोगो लगा था. आई स्टिल रिमेम्बर, मेरे फादर ने वो दिलवाया था मेरे को जब मैंने क्रिकेट खेलना शुरू किया था. एंड इसी तरीके से जितने भी वॉलपेपर्स थे, santabanta.com. Quite right. We are more known for our wallpapers अच्छा, and ब्रांड की imagery. उससे रेवेन्यू भी आपने काफी जनरेट किया. हाँ, we have been very lucky. बहुत हमने रेवेन्यू जनरेट किया और we were doing very very well. Touch wood in the very very beginning. मतलब जब हमने लॉन्च किया था, तो this is also another incident I like to share with the audience, because जब भी कोई नई चीज शुरू करो, अभी तो स्टार्टअप का कल्चर है, तो प्रेशर बहुत होता है. पैसे नहीं होते, कहाँ से पैसे लाएं. तो
शुरू में ट्रैक्शन तो आपने जनरेट करनी है, उसके बाद ही सीड फंडिंग भी मिलेगी, एंजल इन्वेस्ट, सीड फंडिंग तो मिल जाएगी, एंजल इन्वेस्टमेंट या वीसी फंडिंग तो उसके बाद ही मिलेगी। व्हेन यू हैव मेड समथिंग ऑफ योर प्रोडक्ट, यू हैव ट्रैक्शन, पीपल आर यूजिंग इट, सो उस वक्त तो ऐसा कोई चक्कर नहीं था, खुद ही पैसे लगाने पड़ते थे। सो मैं अपनी प्रॉपर्टीज बेच बेच के, बिकॉज व्हेन आई स्टार्टेड ऑन माय ओन इन 97, तो 2-3 साल प्रॉपर्टी का काम किया मैंने। सो मेरी जो प्रॉपर्टीज थी मैं बेच बेच के लगाई जाता था, तो माय फ्रेंड्स, माय पेरेंट्स, दे वर वेरी अपसेट, व्हाट आर यू डूइंग, कि आप इतना अच्छा बिजनेस छोड़ के आप मतलब ये संता बंता में लगा रहे हो, यार क्रेजी। सो मैं उनको बोला भी, अभी ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया, साल हो गया था, 9 महीने या साल हो गया था। मैंने कहा चलो लेट्स टेक इट भी, ये मैं बिजनेस बंद करता हूँ, कुछ और स्टार्ट करता हूँ। मैंने कहा उसको भी 3 साल लगेंगे सेट होने में, क्योंकि देयर इज एन ओल्ड एडेज इन पंजाब विच गोज लाइक, पहले साल चट्टी, दूसरे साल हट्टी, तीसरे साल खट्टी। चट्टी मीन्स दैट अपने आप से पैसे लगाने पड़ेंगे, चाटना ही पड़ेगा, बचेगा कुछ नहीं आपके लिए खाने के लिए। दूसरे साल हट्टी, ब्रेक इवन, भी हट्टी मीन्स शॉप इज एस्टेब्लिश्ड। थर्ड ईयर इज खट्टी, थर्ड ईयर इज प्रॉफिट। मैंने कहा अब मैं फिर शुरू करूंगा, मेरा 1 साल तो खराब हो गया, फिर मैं 0 से स्टार्ट करूंगा। सो I could really make them understand, but still प्रॉब्लम तब आ गई जब मेरे फ्रेंड्स और मेरे पेरेंट्स ने मेरे वाइफ को भी इम्प्रेस कर लिया, भी इसको बोले ये ना करे। सो आई स्टक टू इट, आई स्टक टू माई पैशन। और जब आप किसी चीज के लिए पैशनेट हो ना, व्हेन यू बिलीव इन समथिंग, then you can do wonders. I tell these startups also that you have to believe in what you are doing, because there's a very small difference between success and failure. कई बार सक्सेस मिलने वाला होता है और लोग उस वेंचर को छोड़ जाते हैं, because people are telling me this is not right, this is not right, this is not right. If you believe in it, take it from me, वो वेंचर कभी फेल नहीं हो सकता. It has to do wonders, it will do wonders. If not now, its time will come. So बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मतलब जो भी आप अपनी जिंदगी में कर रहे हो उस पे आपको बिलीफ होना बहुत जरूरी है. एंड द अदर थिंग आई टेल एवरीबॉडी इज दैट व्हाटएवर यू आर ट्राइंग टू डू इन लाइफ, उसमें आपकी हॉबी या इंटरेस्ट होना चाहिए, या उसमें आपकी फॉर्मल एजुकेशन होना चाहिए, या फिर वो इट शुड बी रिलेटेड टू समथिंग योर पेरेंट्स, your dad was doing or running a business or your mom was running a business. तो उसके रिलेटेड आप कोई काम करोगे, because you already have a lot of information and knowledge about it, and you can take the wisdom from your parents also. जो एजुकेशन आपने ली हुई है, you can talk to your contemporaries जो आपके क्लास में हो. मैं ज्यादा तो नहीं बोल रहा, आप भी बीच में कुछ बोल रहे हो, मेरे को लग रहा मैं अकेला बोल जा रहा हूँ. सो अगर आप नहीं सर, योर स्टोरीज आर सो, ओके, सो आपको वही काम करना चाहिए जिसके बारे में आपको कुछ पता है. अगर इस कुछ भी नहीं आपको पता और आप स्टार्ट कर रहे हो बिकॉज समवन एल्स इज आल्सो डूइंग इट, then I would certainly say that you are playing crazy. Then the success percentage of that venture goes down too much. मैं सर एक और बात दोबारा वो एक चीज जानना चाहूंगा. आई वांट द व्यूअर्स टू नो कि जब गूगल एड्स एकदम से आया था तो किस तरीके से आपकी उसके साथ डीलिंग रही, क्या वो नई चीज थी? आज की डेट में तो मेरे ख्याल से दे आर पेइंग वेरी लेस. उस टाइम पे किस तरीके से गूगल एड्स ने अपने आप को स्टैब्लिश किया? आप उसके ऊपर कुछ बहुत इंटरेस्टिंग है. आई थिंक द ईयर वाज 2005 एंड आई हैड मूव्ड फ्रॉम लुधियाना टू चंडीगढ़. तो आई वाज वर्किंग विद अदर एड नेटवर्क्स एंड तो
मैं कैलकुलेट किया था, अभी भी मेरे पास वो कागज संभाला पड़ा है। सो मैं और मेरी वाइफ ने बैठ के वो पूरी डिटेल बनाई। I'll come to Google after this. I'm heading जी towards it. So जी जी I'm not going to go off track, but something interesting. So हमने वो एक्सपेंसेस बनाए और जो पैसे आ रहे थे वो बनाए, तो कैलकुलेट करना शुरू किया, तो वी रियलाइज दैट द रेवेन्यू वाज 90,000 रुपीज, और जी जो एक्सपेंसेस थे एम्प्लॉयज के, किराए के, बच्चों के, हाउस रेंट के, सब कुछ मिला मिलू के it was close to 2.25. So there was a shortfall of 1,35,000. जी So हमने क्या करना है, मैंने कहा देख ही जाएगा, लेट्स सी। पहले अब तो 90,000 आ रहा है, पहले तो ये भी नहीं आता था, ये भी तो आ ही रहा है। सो हम मूव किए ही थे चंडीगढ़ में, और आई थिंक गॉड blessed us at that point of time. Google started Google AdSense. They got in touch with me, और रात को कॉल आती होती थी एक बंदे की वहां से। सो जी उसने मेरे से बात की। सो कहते वी लाइक टू रन गूगल एड्स ऑन योर साइट। सारी साइट की एड हमने लेनी है, ये नहीं भी जी एक ही स्लॉट लेनी है या इन्हीं पेजेस पे लेनी, कहते सारी जितनी इन्वेंट्री है। तो इन्वेंट्री की हमने डिटेल उससे शेयर कर दी, एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ हैगलिंग ओवर प्राइस। इट कैरिड ऑन फॉर गुड 3-4 days, एंड आई वाज स्केयर्ड आल्सो, इसको जाने नहीं देना। सो बार्गेनिंग पावर मेरी कम थी, बट बहुत बढ़िया भी थी, बिकॉज वी वर वन ऑफ द बिगेस्ट साइट्स ऑफ इंडिया। जी सो आई गॉट अ वेरी गुड प्राइस फ्रॉम देम। सो सारी साइट पे उनकी एड चलती थी, और पैसे तो गूगल हमेशा ही वक्त पे देता है। सो ऑल माई टेंशंस वैनिश्ड इन थिन एयर, एंड आई हैड द टाइम ऑफ माई लाइफ when I started out with Google AdSense. So मैंने कोई कंट्री नहीं छोड़ी, कोई जगह नहीं छोड़ी, कोई अपने अरमान, अपनी फैमिली के अरमान, वाइफ के, बच्चों के नहीं पूरे किए हूँ। सो वंडरफुल टाइम था, बहुत मजे थे। एंड आई टेल यू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग ओवर हियर अगेन। जी बातों में से बात याद आ जाती है। भी मैं 1.5-2 महीने घूमता रहता था गर्मियों में, जब बच्चों की छुट्टियां होती थी। यूज्ड टू बी अब्रॉड, एंड आप पूछोगे भी इतनी देर पीछे काम कैसे चलता था। काम बहुत बढ़िया चलता था, बहुत बढ़िया चलता था। देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। आई टेल एवरीबडी, इट्स नॉट द पीपल हु वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन, इट्स द सिस्टम्स दैट वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपके सिस्टम स्ट्रांग है ना, सो आपके जो एम्प्लॉयज हैं ऑर्गेनाइजेशन के, आपके टीम मेंबर्स हैं, दे विल डू वंडर्स। हम अब भी कोई हायरिंग करते हैं ना, तो बंदे को पता लग जाता है भी यहाँ काम करना पड़ेगा, डिलीवर करना पड़ेगा। अगर नहीं किया तो निकाल देंगे। तो वो जनरली बंदा खुद ही चल जाता है। हमें कोई कभी दिक्कत नहीं आई, कभी दुविधा में नहीं पड़े भी बंदे को निकालना, वो जी बंदा अपने आप चला जाता है, बिकॉज ही रियलाइजेस ही इज अ मिसफिट इन दिस ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ मैं डिलीवरी तो कर नहीं रहा, बिकॉज कंटेंट इज समथिंग आई कम टू नो भी आज क्या हुआ। अगर इवन इफ आई एम नॉट ऑन टॉप ऑफ इट, नॉट क्रिएटिंग कंटेंट विद माय टीम, आई कम टू नो द मोमेंट आई ओपन द साइट। द होम पेज खुलने से ही मेरे को पता लग जाता है भी क्या क्या आज अपडेट हुआ, क्या नहीं। और सभी की ड्यूटीज पता है भी इसने ये करना है, इसने अगर वो सेक्शन नहीं हुआ, उसी फोन करके या मैसेज करके भी यार क्या हुआ, क्या दिक्कत थी। अभी मैं खोलता हूँ साइट, मेरे को पता लग जाता है टीम ने क्या किया, क्या नहीं किया। तो जी प्रॉब्लम्स कई बार आ जाती हैं, इंटरनेट कनेक्शन का चक्कर होता है लोगों का, कई बार बिल्कुल नहीं चलता, कभी लाइट चली जाती है व्हेन पीपल आर वर्किंग फ्रॉम होम। So I certainly am a strong advocate that you should have very strong systems in your organization, because ultimately systems ही चलेंगे, बंदे नहीं चलेंगे। बंदे तो आते जाते बिल्कुल रहते हैं ऑर्गेनाइजेशन। सो अगर आपके स्ट्रॉन्ग सिस्टम्स हैं ऑर्गेनाइजेशन में, सो एवरीथिंग विल गो ऑन स्मूथली। सर, इसी से मेरे को एक और चीज याद आई।
मेरे को याद आया कि संता बंता ने आईसीएल में भी पार्टिसिपेट किया था। आप एक टीम के ओनर भी रहे हैं। आपने वो एक आईसीएल वाली जर्नी आपकी कैसी रही? मतलब आईसीएल एक बहुत उस कम टाइम के लिए इंटरेस्टिंग रहा, थी, बट वो लर्निंग थी, लर्निंग लर्निंग पे पैसे बहुत लग गए। सो वहां जब भी एक ट्रॉफी कौन सी होती है, जब सीनियर ए टीम, बी टीम और मेन टीम इंडिया की खेलती है एक टूर्नामेंट, वर्ल्ड कप। दुलीप ट्रॉफी होती है। हाँ, दिलीप नहीं ट्रॉफी नहीं, में। इन दुलीप ट्रॉफी वो मोहाली में हुई थी। आई थिंक द ईयर वाज 2005 or 6 only. So I'd sponsored that. तो जब वो स्पॉन्सर किया तो उनको पता लग गया आईसीएल वालों के पास भी इसके पास पैसे हैं खराब करने के लिए, इसको पकड़ लो। तो चंडीगढ़ लायंस टीम थी जो वो मैंने ले ली थी। तो अहमदाबाद में पहला मैच था जो मैंने देखने गया था वहां पे। सो काफी हाइप क्रिएट हो गई थी संता बंता के बारे में मेरे भी। तो but I paid a lot of money for it. The idea behind that at that point of time was I had been promised ये जब होगी ये आपको मिल जाएगी। बट वो लास्ट ही सीजन था मेरे ख्याल, एक ही सीजन हुआ है शायद, या एक या दो एक हुए हैं सीजन ही सर। हुआ था आईसीएल के। एक या दो हाँ, या सीजन हुए अगर थे दो सर, हुए, कुछ। दो सीजन हुए हैं तो आई केम इन व्हेन इट वाज द सेकंड सीजन। मैं एक ही सीजन रहा हूँ, तो अच्छा। उसी बाद ही वो बंद हो गई। So हाँ, I believe my money went into the drain, but it's okay. ठीक है, I had a short uh, kind of a celebrity experience at that point of time. नहीं सर, Something very interesting. यू आर अ सेलिब्रिटी योरसेल्फ सर, एंड मेरा नेक्स्ट No, सवाल यही I'm था not a celebrity. कि आप अपने करियर के पीक पे रहे हैं, तो आप काफी सारे सेलिब्रिटीज से भी मिले हैं। बॉलीवुड स्टार्स, क्रिकेटर्स, मॉडल्स, टीवी stars, and other entrepreneurs, maybe some other people from abroad as well. So sir, आपके तीन ऐसे एक्सपीरियंसेस, तीन अच्छे एक्सपीरियंसेस विद एनी थ्री सेलिब्रिटीज, जिनका आप नाम लेके भी बता सके कि ये तीन सेलिब्रिटीज के साथ मेरे बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, सिंस यू आल्सो फीचर देम ऑन योर Because वेबसाइट। ये जो सेलिब्रिटीज होते हैं ना, इनके साथ मेरा इंटरेक्शन अगर एक बार हुआ तो आई वुड नॉट बी एबल टू रियली मेक आउट मच ऑफ इट। बट देयर हैव बीन एक्सपीरियंसेस। नारायण मूर्ति को मैं मिला था at Jaipur at some conference. So I have a habit of asking question. So क्वेश्चन पूछता हूँ ना, सत्ताबंता.com बोलता हूँ तो सभी को रिकॉल वैल्यू भी हो जाती है, बहुत बढ़िया तरीके से याद आ जाता है ये। ठीक है, बंदा कौन है संता बंता, एवरीवन रिकॉग्नाइजेस इवन इफ दे डोंट रिकॉग्नाइज मी। So that experience I really remember vividly, and after I had asked the question and he had answered it, after the session ended, I went to meet with him and had a photograph. So मैंने कहा मैं आपसे हाथ मिलाना चाहता हूँ, if you don't mind. भी शायद कोई पैसे वाली या लक वाली या फिलंथ्रॉपी वाली या जो भी आप गाय यू आर, मेरे भी वो हाथ में कोई ना कोई लाइन आपकी आ जाए। So I vividly remember this experience. And talking of celebrities, आलिया भट्ट के बारे में बताता हूँ। आलिया भट्ट की वो मूवी आई थी जिसमें वो शाहिद कपूर भी था, पंजाब पे बनी थी ड्रग्स पे। आई हाईवे। कीप फॉरगेटिंग द नेम। नॉट हाईवे, शाहिद कपूर की थी जिसमें वो ड्रग्स लेता है, और आलिया भट्ट का बहुत अच्छा रोल था उसमें। उसने गाना भी गाया था उस मूवी में, एक आलिया भट्ट ने। सो एक कॉन्फ्रेंस थी दिल्ली में, तो आई वाज ओवर देयर। सो जब ओपन सेशन था, अभी 4-5 कहते सवाल पूछ लो, मैंने भी उससे कोई क्वेश्चन पूछा था। एंड आफ्टर दैट समवन आस्क्ड हर इफ यू वुड कैन सिंग अ सॉन्ग दैट यू sang in the movie. So then she
sang that song for the audience and she dedicated it to me. And वो मैं अपनी लाइफ में कभी भी नहीं भूल पाऊंगा, because she is a wonderful actress, बहुत बढ़िया एक्ट्रेस है, and I find her to be a very good human being also, and she understands humor very well, क्योंकि आलिया भट्ट पे इतने पीजेस बने हैं, and she took them in a very hearty way. She even made a video of it and share it with everybody. So जो बंदा अपने आप पे जोक सुना सकता है, अपनी तरफ से लोगों को हंसा सकता है at his own expense or at her own expense, nothing like it. बहुत कम लोग हैं जो जोक अपने पे लेके and can create and make people happy. ये सरदारों में बहुत ज्यादा है, सभी पंजाबीज में भी है बहुत ज्यादा, बट बहुत कम कम्युनिटीज में ये है जो अपने पे जोक लेके दूसरे को, किसी को खुशी दे सकते हैं. सो आलिया भट्ट एंड नारायण मूर्ति, यस, आई हैड अ वंडरफुल इंटरेक्शन विद देम. सर सो बेसिकली सर, अब मैं एक चीज जानना चाहूंगा, जैसे अमित का ये सवाल आया है कि काफी सारे स्टार्टअप्स प्रीवियसली बहुत अच्छा कर रहे थे, अब जैसे कोरोना वायरस आया है, लोग कह रहे हैं कि एमबीए वाले बच्चों की जॉब चले जाएगी एंड रिसेशन आएगा, एक बहुत स्ट्रांग रिसेशन आएगा और रेवेन्यू इकोनॉमी हमारी डूब जाएगी, रेवेन्यू बनाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, सेल्स वाली टीम्स के लिए पैसा जनरेट करना मुश्किल हो जाएगा. सो व्हाट डू यू थिंक, ये एक अपॉर्चुनिटी होगी यंग लोगों के लिए, यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए, या एक ऐसा टाइम होएगा जहां पे काफी सारे स्टार्टअप्स बंद होंगे और स्टार्टअप्स को बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ेगी? देखो, एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग. तो आप इसमें से अगर बुरी चीजें निकालनी शुरू करोगे तो आपको बुरी नजर आएंगी, आप अच्छी चीजें निकालनी शुरू करो ना. Now you're getting a time to reflect what I should be doing, what is going to change in this economy that would help me if I start doing that. तो आप अगर ये सोचोगे भी मेरा बिजनेस बंद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, yes, some businesses will close, but there would be so many other opportunities. लोगों ने खाना भी है, पीना भी है, ट्रेवल भी करना है, कपड़े भी खरीदने हैं, सो व्हाटएवर, घर भी लेना है, सब कुछ वही रहेगा. Yes, there's a temporary setback, but people will come out with more vigor. जब अपना कोई बिजनेस है ना, दूर से बैठ के देखो, you learn a lot. So everyone gets an opportunity to reflect on it. Cost cutting हो जाएगी, people will realize कि हम इतने बड़े ऑफिसेस क्यों बनाते हैं, what's the need of it. People will realize that if we can have 50% of the staff working from home, their work can be monitored. What is the need for them to be sitting in your office? So these things gonna change, and ये नेचर की तरफ से लोगों को सिखाया जा रहा है, एंड वी शुड ऑल बी थैंकफुल टू द सुप्रीम बीइंग एंड नेचर जो हमें ये चीजें बता रही है. हमें रियलाइज किया जा रहा है भी गाड़ियां सड़कों पे आने का कोई मतलब नहीं है, इतनी गाड़ियां सड़कों पे घूमती रहती है, पोल्यूशन क्रिएट करती हैं. लुक हाउ द बर्ड्स आर चर्पिंग, द स्काई इज सो ब्यूटीफुल, एंड आई हैवंट हर्ड ऑफ एनीवन फॉलिंग सिक इन दीस डेज. जिसको कोरोना हुआ बहुत कम लोगों को हुआ, वो भी फ्रैक्शन में है, 0.00001% को भी नहीं हुआ होगा इंडिया में. बाकी लोग हेल्दी घर बैठे हैं, नो वन इज गेटिंग सिक, किसी का गला भी नहीं खराब हो रहा, किसी को कोल्ड भी नहीं हो रहा, किसी को फीवर नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा. व्हाई? बिकॉज़ वी आर रिस्पेक्टिंग नेचर राइट नाउ, वी आर रिस्पेक्टिंग अ टमी. उसमें हम वो ठूस नहीं रहे गंद बला, जंक फूड नहीं डाल रहे which is made in an unhygienic manner. स्वच्छ भारत तो अब शुरू हुआ है, अब स्वच्छ भारत होगा. जी. There would be stringent rules for these restaurants, these outlets, food outlets. There would be stringent rules which people have to follow. जी सर. साफ सुथरा खाने को मिलेगा. So nature forces us, when we are not really listening to nature,
It forces us. मैं तो in fact I am moving one petition that एक महीने में 3 दिन लॉकडाउन होना चाहिए. No vehicle should be allowed on the road. Except सही for बात. essential जो ट्रांसपोर्ट की होती हैं, लॉजिस्टिक्स के लिए, मूविंग थिंग्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. एक सैटरडे संडे हो गया, उसके साथ एक फ्राइडे या मंडे अटैच लॉन्ग वीकेंड या छुट्टी होती है. वो हमारे हिंदुस्तान में इतनी छुट्टियां हैं, होते ही हैं बड़े लॉन्ग वीकेंड. तो एक कर दो महीने में. इफ पीपल कैन सिट एंड वर्क फ्रॉम होम फॉर ऑलमोस्ट 50 days, मतलब 3 दिन के लिए घर से नहीं बैठ के काम कर सकते. सैटरडे संडे भी छुट्टी होती है, एक दिन ऐड ही करना ना. 3 दिन एवरीथिंग लॉकडाउन. लेट द नेचर ब्रीथ. लेट द नेचर एग्जैक्टली एग्जैक्टली टेक सर. आउट द तो सर, ये पॉजिटिव. इस क्वारंटाइन में, जैसे हमारे हमारे को क्वारंटाइन हुए काफी दिन हो गए हैं, तो आप इस क्वारंटाइन को किस तरीके से जी रहे हैं? जितना मैं आपको जानता हूं, आप कुकिंग भी करते रहे हैं, आप काफी शौकीन है कुकिंग के, आप नई नई चीजें ट्राई करते रहते हैं. तो आप ऐसी क्या नई चीजें कर रहे हैं जो आप पहले नहीं कर रहे थे? देखो, कुकिंग तो मैं हमेशा करता था, अब थोड़ी ज्यादा कर रहा हूँ. सो whenever I feel like eating Chinese, तो मैं YouTube पे जाता हूँ या रेसिपी साइट्स पे सर्च मारता हूँ गूगल से, वहां से देखता हूँ इंग्रेडिएंट, देन आई गो टू यूट्यूब. 3-4 रेसिपी देखी, उसमें से देख लिया ये बढ़िया है, इसको ऐसे चेंजेस करके ये बना लेंगे. तो आई कुक इटालियन, चाइनीज, साउथ इंडियन, इंडियन, एनी काइंड ऑफ फूड आई कैन कुक. बेसिक प्रोसीजर वही है, आपको थोड़ा सा समझ आना चाहिए. विद प्रैक्टिस यू कम टू नो. कुकिंग इज द इजीएस्ट जॉब, एंड आई टेल एवरीबडी, if you are a good cook, if you're fond of cooking, and make your friends very happy, you will become indispensable, because then you are required at every party. मैं बारबेक्यू भी बहुत शौक से करता हूँ, और खाना ऐसी चीज है जो दिन में बंदे को 3 बार खुशी दे सकती है. ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, एटलीस्ट 3 times. Food gives happiness to everybody. सर, टू Yes, टू eat स्नैक्स good टाइम. food. स्नैक्स भी ऐड कर लो तो काफी हो जाते हैं, बट रियली इट गिव्स यू इमेंस हैप्पीनेस. अगर आप अच्छा खाना खाओगे ना, यू विल बी इन अ वेरी गुड स्टेट ऑफ माइंड. बुरा खाना जी सर. खाओगे, मतलब बुरा तो कोई भी नहीं होता खाना जो आपको टेस्ट बड्स को नहीं सूट करता हो, तो वो जी. आप अपसेट तो होते ही हो. और मैं तो ड्रिंक्स का भी शौकीन हूँ, और मिक्सिंग भी करता हूँ. मैंने वाइन भी ब्रू की है घर, तो अभी तैयार नहीं हुई है. सो हाँ, आई लव टू मेक दीज पिकल्स ऑल्सो. सो बेकिंग भी मैं करता हूँ. बट सबसे इम्पोर्टेंट है, घर में रहकर एक्सरसाइज करनी बहुत जरूरी है. बिल्कुल योगा सर. करें, मैं करें. और आई बीन वेरी लकी. हम वी गॉट अ न्यू शिट्जू, अ स्मॉल पप, जी. जस्ट बिफोर द जी. लॉकडाउन, और उसके साथ खेलते हैं. एंड पेट्स आर एंटी डिप्रेसेंट्स. सो जी सर. आपको डिप्रेशन नहीं हो सकता इफ यू हैव अ पेट एट होम एंड यू लव दैट पेट एंड यू प्ले विद दैट पेट. और मूवीज का तो हमें वैसे ही शौक है, बिकॉज वी आर केटरिंग टू बॉलीवुड एंड हॉलीवुड एंड बॉलीवुड डेफिनेटली सर. एंड व्हाट नॉट. सो एक और इम्पोर्टेंट मैं बात अभी आपसे मेरे दिमाग में आई, आप शेयर करना चाहता हूँ. जी. नेवर रेस्ट ऑन योर लॉरल्स. नेवर रेस्ट ऑन योर लॉरल्स. अगर आपने कोई काम अच्छा कर लिया है ना, तो ये नहीं है भी वो खत्म हो गया. इट्स अ वर्क इन प्रोग्रेस ऑल टाइम. जी. You cannot be जी सर. lax. जी. Success is not permanent, it's temporary. You have to जी. keep working. तो हम भी संता बनता में, मैं भी थोड़ा लैक्स हो गया था कुछ सालों के लिए, जी. because I was concentrating more on my enjoyment than on business. अब जी. I'm rehauling everything. I'm working very hard from the last almost 9 months to जी सर. change the face how Santa Banta is seen and interacted with. And जी सर. we are working very hard towards that goal. And I hope people would be able to see the new version of santabanta.com very soon. सर, ये न्यू I'm वर्जन very क्या excited. होएगा, क्या इंक्लूड करेगा? ये थोड़ा सा It आप will be ग्लिम्स interactive. देंगे?
एक ग्लिम्स ये है भी, it will be more like social media sites where you can contribute, you can interact, and you can follow a celebrity that you like. आपको वही चीज दिखाएंगे जो आपको अच्छी लगती, सब कुछ नहीं दिखाएंगे. So you pick up what all is good for you in santabanta.com. So you get to see that. That's So, a and we very give, very idea. yeah, because people don't have time, and that they keep seeing content that they don't like and find something out of it. Bhi ye acha. And then we'll give the opportunity to people to save it for them. अगर कोई जोक अच्छा लग रहा है तो आपके वहां पड़ा रहेगा ऐप में, आप उसको जब मर्जी निकाल सकते हो, किसी को सुनाना हो सुना सकते हो. यू कैन ऐड नोट्स टू इट, तो नोट्स के तरीके से आप उसे सर्च कर लोगे एंड यू कैन शेयर. सेम विद द सेलिब्रिटी, सेम विद द वीडियोस, सेम विद द बॉलीवुड. यू कैन हैव योर ओन रिव्यू ऑफ द मूवी. कब आपने मूवी देखी, वो कैसी आपको लगी, किस रेटिंग लगी, एंड everyone will be reviewing the movie, whosoever has seen it, and we will be presenting reviews in a very, very different manner. It will not be a long essay kind of thing. Short, Fingers crossed, precise. sir. Fingers Yes. crossed and best wishes for it, sir. हम लोग तो बस वेट कर रहे हैं कि another success party. So sir, पार्टी तो वैसे ही हो जाएगी, कोई बात नहीं. सर आपकी पार्टी वैसी Success बहुत party is अच्छी all the more sweet. But success party is all the more sweet. डेफिनेटली सर. सर सो आप आई एम स्टिल ह्यूमन के मेरे भी मेंटोर रहे हैं काफी सालों से. तो जैसे मेरे को याद है हम लोगों ने इंडिया गेट पे ब्लड डोनेशन कैंप किया था जो आपके बिना पॉसिबल ही नहीं था. मतलब वो अगर वो कैंप हुआ है वो आई एम स्टिल ह्यूमन का सबसे बड़ा कैंप था और वो अगर हुआ है तो वो सिर्फ आपकी वजह से हुआ और आप उसमें प्रेजेंट भी नहीं थे. मेरी वजह से ही हुआ. आई एम स्टिल ह्यूमन की बहुत लोगों की एफर्ट्स डली हैं. Yes, नहीं नहीं सर. I had a small contribution towards it. It's but yes, whatever I could, I did. Okay, तो shoot सर now. आपका What were you आपका saying? एक्सपीरियंस कैसा रहा है आई एम स्टिल ह्यूमन के साथ? Yeah, you are doing wonderful job. I always thought भी NGOs old बंदे हैं जो business उन्होंने कर चुके हैं और they run an NGO to give them satisfaction that they have done enough in their life. Now they want to contribute to the society. I also had that impression, but after seeing you such young guys running an NGO and doing something all the time, जैसे आपने ये अभी ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन आप घर घर जाके जगह जगह जाके आप जो है राशन के बैग्स दे रहे हो. इट्स अमेजिंग. मतलब थैंक यू. it is unbelievable kind of stuff that you are doing, and I don't know who gives you that much energy, and you Sir, are blessed. you are there. You are one of the You are mentors, blessed. sir. आपकी वजह से एनर्जी जाती है, आपकी वजह से थोड़ा हौसला बढ़ जाता है. It is just that we know that people like you are backing us up. नहीं, we are always there for such noble cause, and I'm totally impressed by you and your team. God has been kind to you, and God has been kind to me also. भी आप जैसे लोग मेरे को उन्होंने मिलाया. नहीं सर. सर जैसे आपको है कि अगर कोरोना वायरस ना होता तो हम लोग सियाचिन जा रहे थे, सियाचिन बेस कैंप. तो आप भी हमारे साथ थे. तो आप काफी ट्रैवल कर चुके, तो आप थोड़ा सा हमें अपना ट्रैवल एक्सपीरियंस बताएंगे. मतलब किस तरीके से आपने एक एक्सपीरियंस बताया था जब आप अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे थे और थोड़ा सा हिल्स की तरफ, ले की तरफ. तो वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस के बारे में बताएंगे क्योंकि उसके आगे फिर सियाचिन बेस कैंप आएगा तो लोगों को थोड़ा सा पता रहेगा कि आप आपके ट्रैवल एक्सपीरियंस के बारे में भी थोड़ा सा जान पाएंगे. हाँ, अब्रॉड का तो मैं क्या बताना, बट इंडिया इज अ ब्यूटीफुल कंट्री, एंड राजस्थान, केरला, नॉर्थ ईस्ट, एंड then the most amazing destination in India is Leh. And Leh not by air and not via Srinagar, Leh via Manali.
if you have to see the real beauty of play, you have to go through via Manali and come back via Srinagar. इतना amazing जगह है, इतनी scenic है. But the most important thing is, which we didn't know at that point of time, we have to acclimatize yourself first at Manali for 2-3 days before moving ahead. Otherwise problem आ जाती है. मैंने वो नई गाड़ी ली थी SUV. So हम जा रहे थे, जब हम मनाली एक रात ही रुके, एक रात भी नहीं रुक सके. जिस दिन हम पहुंचे तो शाम को में हमारे कोई फ्रेंड्स फ्रॉम लुधियाना, that also was staying in Manali, so they invited us to dinner. We were staying in a mess, army mess, because अगर ले जाना है तो army connection is very important, army arrangement is very important, because रास्ते में hotels तो है नहीं जी, army messes होती हैं जहाँ पे आपको रहना पड़ता है, गेस्ट हाउस. So we reached Manali in the evening and हमने डिनर पे जाने से पहले हमने वहां से इंक्वायर किया भी हमारी ऐसे नेक्स्ट बुकिंग है, कंफर्म कर दो भी हम आ रहे हैं वहां पे. सो कहते आप तो जा नहीं सकते मनाली. हमने कहा क्यों नहीं जा सकते? कहते वहां तो एक ब्रिज है, वो केव इन कर गया, वो एक ही ट्रक एट अ टाइम निकल सकता था, वो दोनों तरफ से गाड़ियां आ गई, वो इकट्ठा हो गया. हमने कहा ये तो बड़ा अपसेट हो गया, सारी बुकिंग हुई है. कहते नहीं जा सकते. कोई तो तरीका होगा. उन्होंने पूछा भी आपके पास क्या कौन से व्हीकल है? तो एक वो मेरी सुजुकी की ग्रैंड विटारा थी, नहीं वो लॉन्च हुई. एक और व्हीकल था मेरे इन-लॉज का, वो था शायद सफारी थी, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली. हाँ, कहते फिर आप जा सकते हो. कहते बट यू विल हैव टू लीव दिस प्लेस एट 1 AM एट नाइट. आपको उस जगह को रात को निकलो और 5:30-6 बजे से पहले वहां पे जो ब्रिज जो बना हुआ ओवर दैट रिवर, सो यू हैव टू क्रॉस इट बिफोर 6 AM इन द मॉर्निंग. तो कहते क्योंकि दिन जब धूप आती है तो बर्फ पिघल जाती है एंड द वाटर प्रेशर इंक्रीजेस, काफी ऊपर चला जाता है. सो ड्रिंक की हुई थी और 1.5 घंटे के लिए सोए भी कहाँ, ध्यान है भी 1.5 घंटे बाद उठना, कहाँ नींद आती है. एंड व्हेन आई स्टार्टेड ड्राइविंग, आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट नॉट शेयरिंग माय व्हीकल विद एनीवन टू ड्राइव. मैं खुद ही ड्राइव करता हूँ जहां भी जाता हूँ. अब थोड़ा आदत पड़ गई, बट माय फेवरेट व्हीकल आई नेवर गिव इट टू एनीबॉडी. आई ड्रोव इट माय सेल्फ. वो सिर दुख रहा था उस वक्त, और बिकॉज वी डिडंट हैव स्लीप आफ्टर ड्रिंक्स. सो बहुत मुश्किल से वहां पे पहुंचे, फिर वो क्रॉस किया. तो आगे भी बहुत स्टोरीज है, बट सम अदर टाइम. तेरे को अकेले को सुना दूंगा. लेट्स नॉट बोर अदर्स. Let the startups, entrepreneurs, the people who want to do something in their life, let's talk about it if we have time. So basically आप बहुत सारे स्टार्टअप्स को मेंटोर कर रहे थे, तो अभी आपके कौन से ऐसे 2 फेवरेट स्टार्टअप्स हैं जिसका आपको फ्यूचर बहुत ब्राइट लग रहा है, और ऐसा क्यों? उनमें ऐसा क्या एक्स फैक्टर है जो बाकी स्टार्टअप्स में नहीं है? एक्स फैक्टर, जितने भी मैं मेंटर कर रहा हूं ना, there's something very interesting about all these. Now since you asked this question, वो एक्स फैक्टर अब मेरे दिमाग में आ रहा है. Each one of these ventures, the promoters are very very passionate about it, and they have knowledge of the domain. जी, जितने में मैं इस वक्त मेंटर कर रहा हूं, उनको अपने डोमेन की नॉलेज है, तो that gives them an edge, and I think that is why they are more passionate, that they believe in the work that they are doing in that particular field. तो ये एक्स फैक्टर है, क्योंकि what you conceive in the beginning, it never turns out in the end the same way. तो जब आप कोई भी चीज बनाते हैं, जैसे हमने संता बनता शुरू की थी, we thought it will have a सर्च इंजन, पंजाबी सर्च इंजन. उस वक्त याहू होती थी, गूगल तो था नहीं. तो याहू से हमने देखा, हमने डायरेक्टरी बनानी शुरू कर दी.
Santa Banta was supposed to be a search engine for both the Punjab, East and West, Pakistan और इंडिया। हमने डाटा एंट्री के बंदे बिठाए हुए जो लगे हुए हैं एंट्री करने, सभी बिजनेस की वेबसाइट तो होती नहीं थी उस वक्त, जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिलती थी हम फीड कर रहे थे। सो वी स्टार्टेड एज अ सर्च इंजन एंड अ ह्यूमर साइट, देन वी पिवटेड, वी रियलाइज दैट एंटरटेनमेंट अकेला ह्यूमर नहीं होता जी, एंटरटेनमेंट इज होलिस्टिक, 360 डिग्री होना चाहिए। तो दैट इज व्हाई वी एंटर्ड इनटू बॉलीवुड एंड दैट मेड अस वेरी वेरी सक्सेसफुल, बिकॉज अभी जो हमारा ह्यूमर का परसेंटेज है ना साइड पे 10-15% ही है जो लोग आते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल कम फॉर बॉलीवुड हॉलीवुड। सो व्हाट आई एम टॉकिंग, योर वेंचर विल कीप चेंजिंग, but the passion of the guy who's running it should not be changing जी। उसने कोई चीज बनाई, रियलाइज ये चीज बेटर है, वो थोड़ा चेंज और पिवट कर लेगा। And all these guys who are making, I believe, whatever they are doing, they'll be successful in it, and they'll be able to pivot whenever the need arises, and will make a wonderful thing out of it. Google ने भी सिर्फ सर्च में शुरू किया, कहाँ पहुंच गए वो? Definitely, sir. Definitely. So you have to change the environment. You have to redraw your strategies and goals. अब newspapers हैं बहुत, they gonna be hit the most. एडवर्टाइजमेंट सभी न्यूज़पेपर पे बहुत कम होगी क्योंकि फिजिकली डिलीवर नहीं हो रहे। बिल्कुल, तो फिजिकली नहीं डिलीवर हो रहे हैं और लोगों को आदत नहीं है, जब फिजिकली नहीं देखेंगे ऐड तो दे डोंट अंडरस्टैंड। अभी जब ई पेपर में देखता हूँ अपने मोबाइल पे, दे आर वेरी लेस एड्स इन द न्यूज़पेपर। सो न्यूज़पेपर बहुत हिट हो गए, और जिनकी साइट अच्छी है दे आर अर्निंग फ्रॉम द साइट दैट दे विल डू वेल, बट उतना रेवेन्यू नहीं आ पाएगा जितने की इनको आदत पहले पड़ी हुई है। ऑल द पीपल आर नॉट ऑनलाइन। अभी ई पेपर सभी थोड़ी देख रहे हैं, बहुत कम लोग देख रहे हैं। अगर फिजिकल पढ़ा होगा तो पढ़ेंगे, फिजिकल तो अब लोग बहुत कम लोग लेंगे, बिकॉज द पीपल रियलाइज भी पता नहीं कहाँ से ये होकर आया है और ये कहीं कोई वायरस ना हमारे घर में ले आए। डेफिनेटली सर। एंड सर इसी के साथ मैं 2 सवाल और पूछना चाहूंगा बिफोर वी रैप अप। वन क्वेश्चन इज माय ओन पर्सनल क्वेश्चन दैट कि आपका किसी सेलिब्रिटी के साथ कुछ जैसे कई होते हैं ना, कई सेलिब्रिटीज होते हैं जो काफी एटीट्यूड वाले होते हैं, तो कोई एक ऐसा एक्सपीरियंस जहां पे आपको लगा हो कि कुछ नेगेटिव एक्सपीरियंस हो सेलिब्रिटी, कोई एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहें? आई डोंट रिमेम्बर विविडली एनीथिंग, सो कोई ऐसा हुआ नहीं होगा नेगेटिव जो मैं आपको, क्योंकि जहां भी मैं जाके खड़ा होता हूँ संता बनता बोलता हूँ ना, तो वो मेरा काम तो हो जाता है, मेरी बात भी सुनी जाती है और इंटरेस्ट से सुनी जाती है, और इंटरेस्ट से। सो आई रियली डोंट रिकॉल एनी सच थिंग रियली, और बहुत एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं हुए हैं, तो इट्स ओके, पार्ट ऑफ लाइफ। सो वो भी जरूरी है, अच्छे एक्सपीरियंस भी जरूरी हैं, बुरे भी जरूरी हैं। अच्छे कैसे लगेंगे अगर बुरे नहीं एक्सपीरियंस आपने किए होंगे? सो इट्स सर, आपका कोई एक बुरा एक्सपीरियंस अगर आप शेयर कर सको ना, तो ऐसा होता है जैसे मेरे साथ काफी बुरे एक्सपीरियंसेस हुए हैं, तो आपके एक्सपीरियंसेस सुन के मेरे को ऐसा लगेगा नहीं, अगर आप उस चीज को फेस करके भी आगे निकल गए तो मेरे को थोड़ा हौसला हो जाएगा। तो ऐसे काफी लोग होते हैं जो अर्लियर स्टेज पे होते हैं, जो छोटी छोटी बातों को बुरा लगा के बैठ जाते हैं और बोल देते हैं कि हार मान जाते हैं। तो मैं थोड़ा सा व्यूअर पॉइंट ऑफ व्यू से चाहूंगा कि अगर आप कुछ शेयर कर सकें। आई एम अ हैप्पी पर्सन, काफी हैं, तो मैं सुनाऊंगा भी तो ठीक नहीं रहेगा, बिकॉज आई एम इन अ वेरी पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड राइट नाउ, एंड आई don't attract negative vibes. I try not to, and अगर मैंने यहाँ सुना दी तो I think I'll carry it back to my sleep, which is not good. पॉजिटिव फीलिंग ही रखो, पॉजिटिव चीजें रखो, जो आपको नेगेटिव भी कोई चीज लगती है आपने लर्न किया होगा उसमें से भी पॉजिटिव चीजें निकालो। सो मेरे को कुछ लगता है भी यहाँ मेरे को वाइब्स पॉजिटिव नहीं मिल रही हैं, तो मैं वहां से निकल जाता हूँ, छोड़ देता हूँ, चाहे वो ग्रुप हो, चाहे वो इंडिविजुअल्स का, फैमिली का, या फिर
कोई ऑर्गेनाइजेशन हो. सो इफ आई एम नॉट गेटिंग पॉजिटिव वाइब्स out of that, I leave that place instead of condemning. It's not a good thing. Whatever people are doing, they are thinking with good thoughts only, and if they don't turn out good, it's not their fault. So let's not blame it. कोई अगर बंदे का कोई बुरा एक्सपीरियंस है, क्या पता वो बंदा बहुत बढ़िया हो, उसकी उस वक्त नेगेटिव थॉट्स हो सकता है, हमारी भी होती हैं. सो आप पॉजिटिव चीजें लो, सभी से नेगेटिव ना लो, छोड़ दो ना. इट्स लाइक शॉपिंग. When you go to the market, you buy whatever you like. You don't pick up what you don't like. हाँ, वो मतलब स्कीम में आ जाए, अभी ये चीज शॉपिंग कर रहे हो, इसके आपको ये फ्री मिल रहा है, तो वो फ्री आपको लेना पड़ता है. तो अदरवाइज डोंट शॉप फॉर नेगेटिव वाइब्स, शॉप फॉर ओनली पॉजिटिव वाइब्स. Done, sir. Sir, one last question before we wrap up. आपका यूथ के लिए क्या मैसेज है? आप इस टाइम पे, क्वारंटाइन के बाद, इस टाइम पे यूथ को क्या करना चाहिए? क्वारंटाइन के बाद क्या करना चाहिए? किस तरीके से वो आगे अपने करियर को लेके प्रोसीड कर सकते हैं? सिंस यू हैव बीन अ गेम चेंजर इन द फील्ड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि आज के डेट में जितने मेरे को कॉल्स आते हैं, जितने मेरे को लोग जानते हैं, वो थोड़े घबराए हुए हैं, जो एमबीए कर रहे हैं, जो स्टार्टअप्स कर रहे हैं. तो उनके लिए आपकी तरफ से क्या मैसेज होएगा? घबराना किस लिए? एवरीथिंग इज डिस्टाइम्ड. जो होगा होगा. फ्री विल होती है. हाँ, फ्री विल से काफी कुछ आप चेंज कर सकते हो. बट व्हाई फियर? देयर इज नथिंग टू फियर. मैं तो सभी को बोलता हूं, रिमेन हैप्पी. यू शुड वर्क ऑन द हैप्पीनेस क्वेश्चन. डोंट वर्क ओनली ऑन योर कैरियर और योर मनी. कैरियर से क्या मिलेगा? पैसे कमाओगे जी. उसके बाद आपको बड़ा घर चाहिए होगा, बंगला चाहिए होगा. एट द एंड ऑफ इट यू स्टिल क्रेव फॉर हैप्पीनेस. अगर वो हैप्पीनेस अभी आपको मिल रही है कम पैसे कमा के भी, तो क्या दिक्कत है? वी डोंट नीड. डू वी रियलाइज दैट व्हाइल वी आर सिटिंग एट होम कितने पैसे चाहिए हमें? कुछ भी नहीं. वी नीड वेरी लिटिल मनी टू बी हैप्पी एंड टू सर्वाइव. ये तो कंज्यूमरिज्म है जो वेस्टर्न सोसाइटी ने हमें दे दिया है. और बिग बिजनेस हाउसेस में कंज्यूमर, ये कर ले लो, वो ले लो, ये ले लो, वो ले लो, ये ले लो, वो ले लो. वी डोंट नीड ऑल दीज थिंग्स. We only need happiness at the end of the day. We need to be doing what we like. We should not be running after a career. हाँ, कोई एस्पिरेशनल है, अभी मैंने ये करना है, इट्स गुड. देन व्हाई फियर? अगर वो करना ही है तो करो. बट व्हाई यू हैव टू फियर? जस्ट हैव अ हैप्पी एटीट्यूड. एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस. खुशी आपको सब कुछ देगी. अगर कुछ नहीं भी दे रही हो, आप खुश हो ना, तो then also you don't need that thing. You're all doing this for the happiness. So if you are not happy, and money is just a thing. You don't have to fall in love with it. Fall in love with yourself, the most important. Fall in love with yourself. Pamper yourself. Yeah. So take care of yourself. भूल जाते हैं. हाँ, वो अपने आप हो जाए. Nothing is gonna change. People would still be earning. People would still be working. All the things that I said in the beginning. हमें वो चीजें चाहिए होंगी जब पहले भी चाहिए थी. वो नहीं चाहिए होंगी तो कई नई चीजें आ जाएंगी. So you should not fear. Enjoy करो. Enjoy the present. Enjoy the lockdown. Try to enjoy the lockdown if you are not enjoying it. People will remember this lockdown. सभी बोलेंगे, I miss those quarantine days. I miss that lockdown period. I miss that sky when there was lockdown. वो birds नहीं आ रही जो पहले आती थी lockdown के पीरियड. Why don't you enjoy it when it is there? बाद में भी तो याद करना है. अब ज्यादा उसके साथ टाइम वक्त स्पेंड करो. रूम में मत बैठे रहो. छत पे जाओ, लॉन में जाओ. गो आउट. एंजॉय नेचर. ऑक्सीजन इतनी बढ़िया लो जितनी आपको सिस्टम
ज्यादा से ज्यादा ले सकते। इंजॉय करो, enjoy your time with your kids, your family, spend time with them. ये वक्त नहीं आएगा वापस, कोई वक्त वापस नहीं आता, ये तो बिल्कुल नहीं आएगा। ये हमें डेफिनेटली सर। फोर्स्ड हॉलीडे दी गई है। सो वकेशन है, इट्स अ वकेशन। और जो बंदे घर से काम कर रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत ही ज्यादा बढ़िया ब्लेसिंग है। सो ट्राई टू गेट योर बिजनेस ऑनलाइन, वट एवर यूर डूइंग, योर सर्विस ऑनलाइन, वट एवर, कुछ भी कर रहे हो। सो थैंक यू सो मच सर, आपने हमें टाइम दिया एंड आपके जितने भी एक्सपीरियंसेस रहे हैं, मेजरली आपके जितने टिप्स रहे हैं, वो मेरे ख्याल से मैंने काफी कुछ सीखा है आपसे। और मैं बिलीव करता हूँ कि जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, जो ये वीडियो अपलोड होगी तो जितने भी व्यूअर्स होंगे वो भी काफी कुछ सीखेंगे। एंड जितना भी आपने कहा है बिल्कुल सही बात है कि हमें अभी घबराना नहीं चाहिए। और एज ऑलवेज जैसे आप बिजी हैं अपने कुकिंग के साथ और आप काफी यंग लग रहे हैं अब, मेरे ख्याल से आपने एक्सरसाइज करनी भी शुरू कर दी है। सो वी शुड नहीं, लर्न पहले ही फ्रॉम यू। करता था, अभी ज्यादा हो गया। पहले सर आप स्क्वाश खेलने जाते थे, आई रिमेम्बर। आप बैडमिंटन। बैडमिंटन खेलने जाते थे। स्क्वाश से मेरे को याद आता है एक इंसिडेंट, मैं बड़ा सिली इंसिडेंट है, मैं आपके साथ शायद पहले भी शेयर किया है। सो माय फादर यूज्ड टू बी इन दी एयरफोर्स, he retired in 99. So before we wrap up, I'd like to share this experience. तो मैं एयरफोर्स स्कूल में था। तो एक दिन I was in sixth standard, I remember, and somebody came and said, यार I played squash with my father. So मैं थोड़ा कंफ्यूज, मैं कहा मेरी मम्मी तो मेरे को स्क्वाश पिलाती है, ये स्क्वाश खेल के आ रहा है, ये क्या बात बनी? So I went to my dad and I asked him, पापा मेरे को आप स्क्वाश पिलाते हो और ये स्क्वाश खेल के आ रहा है, ये क्या बात बनी? इट इज अनफेयर, आप भी सेम रैंक से हो जिस रैंक से वो है। आई ऑल्सो वॉन्ट टू प्ले स्क्वाश। सो पापा मेरे को लेके गए एंड देर वॉज दिस वॉल, ही सेड इसको स्क्वाश कहते हैं। मैंने कहा ठीक है। Went to school and then again I went to that guy and said, you know, I played squash with my father, and he was like, ठीक है स्क्वाश खेला लेकिन ब्रिटिश एक्सेंट में खेला है या अमेरिकन एक्सेंट में खेला है? सो दैट वाज अ वेरी वेरी अच्छा। फनी इंसिडेंट। एंड उधर से ही मेरे को संता बंता की भी काफी यादें याद है, क्योंकि एयरफोर्स स्कूल में संता बंता को लेके काफी जोक्स बनते रहते थे। देन आई वेंट टू एपीएस एंड गुरु नानक पब्लिक स्कूल। सो great experience sir, and then I met you. Thank you so much sir for giving us time and आपकी learnings, आपका experience share करने के लिए sir, and we look forward to learn more from you. I'm always And available for anybody and everybody whosoever needs my advice, wants me to be mentor. अब हमने एंजल नेटवर्क भी, पंजाब एंजल नेटवर्क है, उसका मैं चेयरमैन हूँ। सो sir, the way, any way we can help anyone, get in touch with me from LinkedIn and I'll take in your request and you can talk to me about anything. And I wish all the best to the team of I Am Still Human. Keep doing this sir, wonderful job. And I love this organization and I love you, Vivek, especially. thank you sir, Because thank you're the pillar of this organization, you're doing wonderful job. और ये कभी झील कम मत होने देना अपनी। you. नहीं sir, We need people कभी कम like होता है you तो आप to please make mention it. this a better world. We need people like you, more people like you. And I would request everybody to get associated with Vivek in whatever way you can and help him and his team to contribute to the society in whatever way. Amazing day I had. Got ready after ages, pagdi pugdi, mandi, shirt, penny, and I think I'll use this opportunity to go to the market and buy some stuff for home. And all the viewers who were here with us and all those who would be listening to this conversation later, I wish you all the best in your endeavors. Remain happy always. Remain happy. And if you can, do yoga and meditate.
Be spiritual, don't be religious. God bless. Take care. Love you all. Bye. Thank you, sir. And Thank you so keep much. logging on to santabanta.com regularly. Definitely, sir. Definitely. Thank you so much, sir. Thank you so much. And we look Bye-bye. forward for Good more day. sessions, sir. Thank you, sir. Bye-bye. Wonderful. Bye. Thank you, sir.